त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पीएम मोदी अमित शाह समेत इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं और अगरतला में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। राज्य के 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान हुआ था और 2 मार्च को नतीजे हैं। और ऐसे में तस्वीर आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है और फूलों से वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। और ये लाइव तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं जहां किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का स्वागत किया जा रहा है। दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि फूलों की वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह है आज और ऐसे में ये देखा जा सकता है रोड शो कि किस तरह से दोनों तरफ भारी भीड़ है, लोगों में उत्साह है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े ही भव्य तरीके से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। और ये अगरतला से सीधे लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। और त्रिपुरा में फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री पद की शपथ आज दिलाई जाएगी जिसमें बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं। आपकी अनुमति से अब आप माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साह। श्री माणिक साहा भगवाনের नामे দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী মাণিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। और ये शपथ ग्रहण समारोह की लाइव तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। और अब ये मंच से सीधी तस्वीरें जहां पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है और एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और दूसरी बार फिर से भाजपा की सरकार। रतनलाल नाथ। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে
कार्यक्रम शुरू हो चुका है। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। হাম ভাই, সবাইকে নমস্কার। যতন কলুমকা। और इसी तरह का कार्यक्रम जारी है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े दिग्गज चेहरे मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि राज्य में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है और ऐसे में लोगों में उत्साह है। हजारों लाखों की संख्या में लोग मौजूद है इस बड़े कार्यक्रम में। वहीं शपथ ग्रहण समारोह है। जिसमें भाजपा ने 33 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की। প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। নমস্কার। और बेहद खास दिन आज त्रिपुरा में जनता के लिए, क्योंकि जिस तरह से राज्य में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में बड़ी संख्या में इस खुशी में शामिल होने भी आए हैं। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ चुकी हैं। अदिति, देखिए बेहद खास दिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और त्रिपुरा के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से राज्य में एक बार देखा जा सकता है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, किस तरह से देखती हैं? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है इमेज बिल्डिंग की। आप देखिए कि मुझे वो दिन याद आता है आज के दिन कि कैसे विप्लव देव को पूरी सरकार के बीच में उनको हटाया गया था और उसके बाद मानेक शाह को लगाया गया था। और आज जिनकी वजह से सरकार वापस आई, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी है, लेकिन कैसे मानेक शाह की इमेज में भले ही ये माना जा रहा था कि विप्लव देव के बाद जो ट्राइबल वोट बैंक में कमी और ट्राइबल वोट बैंक को झटका लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान भी मानेक शाह ने बच्चों को का इलाज करा सड़क पे और तमाम चीजें हुई, तो जो इमेज बिल्डिंग की बात थी वो यहाँ पर कारगर साबित हुई। हालांकि एक सांसद को भी माना जा रहा था कि हो सकता है सांसद ही छोड़ इनको मुख्यमंत्री बनाए। इस बीच में तमाम मशक्कत के बाद, प्लानिंग के बाद 2024 की 25 सीटें जो पूरी नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, उनके मद्देनजर रखते हुए मानेक शाह को एक बार
उनकी इमेज, उनकी कर्मठता, मेहनत को देख के दोबारा शपथ दी जा रही है। और कैसे किस तरीके से होली के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5-2 दिन से लगातार नॉर्थ ईस्ट में ही जमी हुई है। खुद प्रधानमंत्री जो हैं वो रात को असम में रुके, आगे की प्लानिंग करी। इससे कार्यकर्ताओं को बूस्ट मिलता है। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एक एक सीट पर नजर रखने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया है कि नॉर्थ ईस्ट का हर एक बड़ा नेता न सिर्फ चुनाव में, चुनाव के बाद, चुनाव के आगे पीछे जो विकास कार्यों की योजना की गंगा बहाता रहेगा। और आज का ये सीन भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्लभ है। कभी ये सोचा नहीं था कि नॉर्थ की भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में अपना फैलाव करेगी और दोबारा से सरकार बनाएगी। त्रिपुरा में दोबारा सरकार, नागालैंड, मेघालय में सरकार बना लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्योंकि 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी शपथ में शामिल हो रहे हैं। साथ में जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर, और नॉर्थ ईस्ट की पूरी रणनीति कल रात को भी बनाई गई, जिसमें असम के मुख्यमंत्री जो है हिमंतो, उनका भी बड़ा रोल इसमें रहेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए नॉर्थ और साउथ में काम करेगी, ठीक उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी उतने ही बेहतर तरीके से काम करेगी। जी अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।